بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ رومیوں کے لیے کمک آ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے 5000 کی نفری درار بن ازور کو دے کر اسے روکنے کے لیے بھیجا۔ درار وہاں پہنچے اور زبردست مقابلہ کیا، لیکن رومیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے درار کامیاب نہ ہو سکے اور جوش میں آ کر رومیوں کے اندر گھس گئے اور رومیوں کو کاٹتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دمشق کا محاصرہ ابو عبیدہ کے سپرد کر کے 4000 مجاہدین کو لے کر رافع بن عمیرہ کی مدد کو پہنچ گئے، جو درار بن ازور کے نائب تھے۔ خالد بن ولید اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھوڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں آتا تو یہ سوار یک لحظ گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بن ولید بھی دم بہود ہو گئے تھے۔ ایک بار 2 رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد بن ولید کے قریب سے گزرا۔ خالد بن ولید نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پورے سرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد بن ولید کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد بن ولید اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد بن ولید کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے، خالد بن ولید چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد بن ولید کی طرف دیکھا، کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد بن ولید نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں، ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں، سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور ان سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد بن ولید نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا، درار بن ازور کی بہن۔
खुदा की कसम, होला बिनते अजवर ने कहा, मैं अपने भाई को रोमियो की कैद से छुड़ा कर दम लूंगी। खुश नसीब है अजवर जिसके घर में दरार जैसे बेटे और होला जैसी बेटी ने जन्म लिया है। खालिद बिन वलीद ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं बिनते अजवर, हमारे साथ रह और देख कि हम तेरे भाई को किस तरह रिहा कराते हैं। उस दौर में औरतें भी अपने खामदों और भाइयों के साथ मैदान जंग में जाया करती थी। होला अपने भाई दरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आई थी। उन्हें पता चला कि रोमियो ने उनके भाई को कैद में ले लिया है, तो उन्होंने इसे ज़ाती जंग समझ लिया। सिपा सालार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी परवाह न की और रोमियो पर टूट पड़ी। औरतें और बच्चे दमिश्क के मज़ाफ़ात में थे। होला वहां से खालिद बिन वलीद के 4000 मुजाहिदीन के पीछे पीछे चल पड़ी थी। जो ही रोमी और मुसलमान आमने सामने आए, होला ने घोड़े को एड़ लगा दी और रोमियो पर टूट पड़ी। होला ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसने मुजाहिदीन इस्लाम को नया हौसला और नया वलवला दिया। अब मुसलमानों की नफरी भी ज्यादा हो गई थी और क़यादत खालिद बिन वलीद की थी। खालिद बिन वलीद के साथ जो 4000 सवार गए थे वो ताज़ा दम थे। इसके अलावा पूरा लश्कर दरार के कैदी हो जाने पर आग बगोला हो गया था। रोमियो के लिए इस हमले को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने जमकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद की चालों और उनके लश्कर के गैदो गदब के सामने रोमी ठहर ना सके। रोमियो की फौज चूंकि एक मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौज थी, इसलिए उसकी पिसपाई भी मुनज़्ज़म थी। उसे पिसपा करने में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत जोर लगाना पड़ा। रोमियो की पिसपाई से यह मकसद तो पूरा हो गया कि दमिश्क के दिफाई दस्ते कमक और रस्त से महरूम रहे। रोमियो का यह कमाल था कि वो जो रस्त साथ लाए थे वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। अब दूसरा मकसद सामने था और वो था दरार की रिहाई। इस मकसद के लिए खालिद बिन वलीद ने रोमियो का ताक़ुब जारी रखा। रोमी और तेजी से पिसपा होने लगे। खालिद बिन वलीद ने हर दाव खेला, मगर रोमियो ने कोई दाव कामयाब न होने दिया। खालिद बिन वलीद ने ताक़ुब की रफ्तार कम न की। उनकी कोशिश ये थी कि रोमी कहीं रुकने ना पाएं। खालिद बिन वलीद खुद पीछे रह गए। ये बहन का इसार था जो अल्लाह ने कबूल किया, और ये दरार का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो अल्लाह को अच्छा लगा। दरार की सरफरोशी को अल्लाह ने नज़रअंदाज ना किया। पता चला कि दरार रोमियो की कैद में जिंदा है। यह खबर देने वाले 2 अरबी थे जो इस इलाके में आकर आबाद हुए थे। खालिद बिन वलीद के 2-4 सवार एक छोटी सी एक बस्ती के करीब से गुजरते गुजरते रुक गए। वो पानी पीना चाहते थे। बस्ती के लोग इस ख्याल से खौफजदा हो गए कि ये फातेह फौज के आदमी हैं, इसलिए ये लूट मार करेंगे और जवान लड़कियों पर हाथ डालेंगे। आबादी में हड़बोंग सी मच गई। 2 आदमी मुसलमान सवारों के पास आए। हम भी अरबी बाशिंदे हैं, उन्होंने सवारों से कहा। हम मुसलमान तो नहीं, फिर भी अरब की मट्टी का वास्ता देकर कहते हैं कि हमारी खातर इस बस्ती पर हाथ ना उठाएं। तुम ना कहते तो भी हम इस बस्ती की तरफ देखना गवारा ना करते। एक मुसलमान सवार ने कहा, इन लोगों से कहो कि हमसे ना डरें, हम तुम सब के मुहाफिज हैं, हम पानी पीकर चले जाएंगे। दोनों अरबों ने बस्ती के लोगों से कहा कि वो डरे नहीं और अपने अपने घरों में रहें। उन अरबों ने सवारों को और उनके घोड़ों को पानी पिलाया और इस दौरान वो सवारों के साथ बातें भी करते रहे। बातों बातों में उन अरबों ने सवारों को बताया कि एक घोड़े पर रोमियो ने एक आदमी को बांध रखा था। उसका सर नंगा था और उसकी कमीज भी नहीं थी और उसके एक बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसे उन्होंने यहाँ पानी पिलाने के लिए रोका था। एक अरब ने बताया, वो तुम्हारा साथी मालूम होता था। मुसलमान सवारों को शक ना रहा, यह जरूर दरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सवारों ने उन अरबों से मजीद मालूमात ली। दरार के साथ तकरीबन 100 रोमी थे। वो रोमी लश्कर की पिसपाई से बहुत पहले वहां से गुजरे थे और वो हिम्स की तरफ जा रहे थे। मुसलमान सवारों ने अपने एक साथी से कहा कि वो पीछे जाकर सिपा सालार को दरार बिन अजवर के मुतल्लिक ये इतला दे। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद बिन वलीद ने यह खबर सुनकर कहा, दरार जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। उन्होंने उसे कत्ल करना होता तो कर चुके होते। वो इसे अपने बादशाह के पास ले जा रहे हैं। इब्ने उमैरा को बुलाओ। राफे बिन उमैरा आए तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें दरार के मुतल्लिक जो इत्तला मिली थी पूरी सुनाकर कहा कि वो 100 सवार चुन लें जो जान पर खेलने वाले शाह सवार हों। उन्हें साथ लेकर हिम्स की तरफ एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता न हो। मतलब ये था कि रास्ता छोटा करके हिम्स की तरफ जाएं और उन 100 रोमियों को रोकें और इब्ने अजवर को रिहा कराएं। राफे जब सवारों का इंतखाब कर रहे थे तो दरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन को पता चल गया कि राफे दरार को आज़ाद कराने जा रहे हैं। वो राफे के पास दौड़ी गईं और कहने लगी कि वो भी उनके साथ जाएंगी। नहीं बिनते अजवर, राफे ने कहा, खुदा की कसम, जो काम हमारा है वो हम एक औरत से नहीं कराएंगे। तुझे तेरा भाई चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम भी वापस नहीं आएंगे।
मैं अगर सिपा सालार से इजाज़त ले लूँ तो? दरार की बहन ने पूछा। इब्ने वलीद तुझे इजाज़त नहीं देगा अदबर की बेटी, राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। होला मायूस हो गई। राफे चुने हुए 100 सवारों के साथ बड़ी उजलत से रवाना हो गए। उन्होंने हिम्स की तरफ जाने वाले रास्ते का अंदाज़ा कर लिया था। वह उस रास्ते से दूर दूर तेज़ रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते गए। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे कि एक तरफ से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आ रहा था। वो रूमी नहीं हो सकता था। रूमी होता तो अकेला ना होता। वो खालिद बिन वलीद का कासद हो सकता था। कोई नया हुक्म लाया होगा। वो करीब आया तो उसका सबज अमामा और चेहरे पर कपड़े का निकाब नजर आया। इब्ने उमैरा सवार ने ललकार कर कहा, अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए मैं आ गई हूँ। क्या सिपा सालार ने तुझे इजाज़त दे दी है? राफे ने पूछा। अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, होला बिनते अजवर ने कहा। अगर तू मुझे अपने सवारों में शामिल नहीं होने देगा तो मैं अकेली आगे चली जाऊंगी। खुदा की कसम बिनते अजवर, राफे ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, आ हमारे साथ चल। यह जवां साल औरत साथ चल पड़ी। 100 रूमी सवार दरार बिन अजवर को घोड़े पर इस हालत में बिठाए ले जा रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और पांव इस तरह बंधे हुए थे कि घोड़े के पेट के नीचे से रस्सी गुजार कर दोनों टहनों से बंधी हुई थी। रूमी उन पर फब्तियां कसते और उनका मजाक उड़ाते जा रहे थे और दरार रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक जगह रास्ता नशेब में चला जाता था। उसके दाएं बाएं इलाका खड्डों का था। जब रूमी उस नशेब में से गुजर रहे थे तो अचानक दाएं बाएं और आगे पीछे से राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु के सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया। रूमियों के लिए यह हमला गैर मुतवक्के था। वो इस तरह जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हों। दरार की बहन खोला ने अपने भाई को देखा तो उसने रोमियों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए जिस तरह वह पूरी रूमी फौज पर कर चुकी थी। राफे भी ऐसे ही जोश में थे। उनके सवार हजारों में से चुने हुए थे। उन्होंने रोमियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उनमें से जो मरे नहीं या जख्मी नहीं हुए थे भाग उठे। खतरा यह था कि रूमी दरार को कत्ल कर देंगे। उनकी बहन तलवार और बर्छी चलाती दरार तक पहुंच गई। रोमियों ने उनकी ये कोशिश कामयाब न होने दी, लेकिन राफे ने ऐसा हल्ला बोला कि रोमी सवार बिखर गए और फिर फर्दन फर्दन भाग उठे। सबसे पहले दरार ने राफे से हाथ मिलाया और जब बहन भाई मिले तो वो मंजर रिक्कत अंगेज भी था और वलवला अंगेज भी। बहन अपने भाई के जख्म देखने को बेताब थी। बाद मुर्रहू ने खोला के ये अल्फाज लिखे हैं, मेरे अजीज भाई, मेरे दिल की तपश देख, किस तरह तेरे फिराक में जल रहा है। अपने जख्म दिखाओ दरार, बहन ने बेताबी से कहा। मत देखो होला, दरार ने बहन से कहा, और ये जख्म मुझे भी ना देखने दो, ये जख्म देखने का वक्त नहीं। दरार ने राफे और उनके सवारों से कहा, चलो दोस्तों, रूमी कहाँ हैं? दमिश्क के मुहासरे का क्या बना? रूमी लड़ भी रहे थे और पिस्पा भी हो रहे थे। यह उनकी तंजीम भी थी और जुरत भी कि वो भाग नहीं रहे थे। एक ऐसी जगह आ गई जिसके दोनों तरफ चट्टानें और कुछ बुलंद टीकरियां थी। रूमी लश्कर को सुकड़ना पड़ा। खालिद बिन वलीद ने अपने दोनों पहलुओं के सालारों से कहा कि वो चट्टानों की दूसरी अतराफ में निकल जाएं और सरपट रफ्तार से रूमियों के अकब में चले जाएं। रूमी ना देख सके कि चट्टानों के पीछे से उन पर क्या आफत टूटने वाली है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताकुब की रफ्तार कम कर दी। रूमी समझे होंगे कि मुसलमान थक गए हैं। उन्होंने पिस्पाई रोक ली। खालिद बिन वलीद ने अपने दस्तों को भी रोक लिया। अचानक अकब से रोमियों पर क़यामत टूट पड़ी। सामने से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद हमला कर दिया। रोमियों की यह हालत हो गई कि वो घोड़ों को चट्टानों और टीकरियों पर चढ़ा ले गए और दूसरी तरफ उतर कर भागने लगे। तवक्को यह थी कि रूमी रस्त वगैरह का जो हीरा साथ ला रहे थे वो मुसलमानों के हाथ आ जाएगा, लेकिन रोमियों ने घोड़ा गाड़ियों और ऊंटों को पहले ही हिम्स रवाना कर दिया था। हिम्स की तरफ जाने वाली राह गुजर पर रोमियों की लाशें बिखरी हुई थी। जख्मी तड़प और कराह रहे थे। उनके घोड़े इधर उधर आवारा फिर रहे थे। मुजाहिदीन ने हुक्म मिलते ही अपने साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाया। जख्मी और मरे हुए रोमियों के हथियारों को इकट्ठा किया और उनके घोड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। काश मेरे पीछे दमिश्क ना होता, खालिद बिन वलीद ने कहा। मैं दुश्मन के एक आदमी को भी दमिश्क तक ना पहुंचने देता। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताकुब तरक कर दिया, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र कि रूमी कहीं इकट्ठे होकर या हिम से कमक मंगवा कर वापस ना आ जाएं, आपने एक सालार समत बिन असवद को बुलाया। 1000 सवार अपने साथ लो और रोमियों के पीछे जाओ, खालिद बिन वलीद ने कहा। उन्हें कहीं इकट्ठे ना होने देना। जंगी कैदी बिल्कुल नहीं लेने। जो सामने आए उसे खत्म कर दो। फौरन रवाना हो जाओ। वलीद के बेटे खालिद बिन वलीद को किसी की पुकार सुनाई दी। वो आ गया मेरा नंगा जंगजू। खालिद बिन वलीद ने दरार को आते देखकर नारा लगाया।
दरार को अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। वो घोड़े से कूद कर उतरे, खालिद बिन वलीद भी कूद कर उतरे और तारीख इस्लाम के दो अजीम मुजाहिद एक दूसरे के बाजुओं में जकड़ गए। खोला घोड़े पर सवार थी, उसका चेहरा निकाब में था, सिर्फ आंखें नजर आती थी जिनकी चमक और ज्यादा रोशन हो गई थी। खुदा की कसम इब्ने अजवर, खालिद बिन वलीद ने कहा, तेरी बहन ने तेरी खातर मेरा भी मुंह फेर दिया था। इस बहन पर अल्लाह की रहमत हो। दरार ने कहा, तू मुझे बता मैं क्या करूं? क्या तू महसूस नहीं कर रहा कि तुझे आराम करना चाहिए? खालिद बिन वलीद ने कहा, पहले जराह के पास जा और उसे अपने जख्म दिखा। दरार बिन अजवर जराह के पास तो चले गए, लेकिन सिर्फ पट्टियां बंधवा कर वापस आ गए। सलार समत बिन असवद रोमियों के ताकुब में गए। रोमी बुरी तरह भागे जा रहे थे। उनकी आधी नफरी तो लड़ाई और पिसपाई में खत्म हो गई थी और बाकी निसफ बिखर गई थी। समत जब हिम्स के करीब पहुंचे तो देखा कि रोमी हिम्स के कले में दाखिल होने जा रहे हैं। उस दौर में हिम्स एक कलाबंद कस्बा हुआ करता था। समत वहां जाकर रुक गए। उन्हें मालूम नहीं था कि कले के अंदर कितनी फौज है, फिर भी उन्होंने अपने 1000 सवारों को कले के इर्द गिर्द इस अंदाज से दौड़ाया जैसे वो मुहासरा करना या कले पर हमला करना चाहते हों। कले का दरवाज़ा खुला और 3-4 आदमी जो फौजी नहीं थे बाहर आए। वो रोमी नहीं, मकामी बाशिंदे थे। सलार समत बिन असवद ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्यों आए हो? समत ने पूछा। अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं, एक ने कहा। रोमी मजीद लड़ाई नहीं चाहते। क्या तुम्हारा शहनशाह हरकुल भी मजीद लड़ाई नहीं चाहता? समत ने पूछा। हम शहनशाह रोम की तर्जुमानी नहीं कर सकते, हिम्स के एक शहरी ने कहा। हम ये पैगाम लाए हैं कि हिम्स वाले नहीं लड़ना चाहते। आप जिस कदर सामान्य खुर्दो नोश चाहते हैं हमसे ले लें। आप जितने भी दिन यहाँ क्याम करना चाहते हैं करें। आपकी फौज और घोड़ों को खुराक हम मुहैया करेंगे। किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सालार समत ने हिम्स में रोमियों से सुलह की क्या शराइत मनवाई थी। वो वापस आ गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के साथ दमिश्क वापस जा चुके थे। मुअर्रख लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद जब दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफो हरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इतला मिली थी कि अंताकिया से कमक और रसद आ रही है। अब उन्हें इतला मिली कि कमक को मुसलमानों ने रास्ते में ख़त्म कर दिया है। दमिश्क में रूमी सालार तोमा था जो शहनशाह हरकुल का दामाद था। चंद एक शहरी वफ्द की सूरत में तोमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि यह बुज़दिली है? तोमा ने कहा। हमने अभी मुहासरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे यह मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? हम सलार मुअज्जम को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं, वफ्द के एक और आदमी ने कहा। शहर के लोग ये सुनकर हरासा हैं कि जिस फौज ने मुहासरा कर रखा है और हमारी कमक को भी ख़त्म कर दिया है, वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएगी। फिर घर हमारे लूटे जाएंगे, बच्चे हमारे कुचले जाएंगे और लड़कियां हमारी उठाई जाएंगी। हम यहाँ तक नौबत नहीं आने देंगे, सलार तोमा ने कहा। सलार मुअज्जम, एक और शहरी ने कहा। आपको यकीनन मालूम होगा कि नौबत कहाँ तक पहुँच चुकी है। शहर में खुराक की इतनी कमी हो गई है कि लोगों ने दूसरे वक्त का खाना छोड़ दिया है। 2-3 दिनों बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करें, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत भी कर सकते हैं। यह सूरत सुल्तानत रोम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सजा क्या है? तोमा ने शाही रोब से कहा। हम जानते हैं सलार आला, वफ्द के एक आदमी ने कहा। हम आपको कहत और उससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मारने से बेहतर ना होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर लें? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना, तोमा ने कहा। मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो रोम की अजीम सुल्तनत की तौहीन का बायस हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतजार करो।